Now would request Dr. V.N. Tripathi, sir. So it's my pleasure to introduce Professor Dr. V.N. Tripathi. He is a Fellow of American Academy of Pediatrics, ex-Director General Medical Education, Principal and Dean, Government Medical College, and is also Professor and Head, Department Pediatrics, GSVM Medical College, Kanpur. He is Superintendent in Chief, LLR and Associated Hospital, Kanpur, National Vice President of Indian Academy of Pediatrics. He is President of Indian Academy of Pediatrics and National Neonatology Forum, President UP Medical Council and Faculty, President Rotary Club of Kanpur, and Assistant Governor Rotary Club. So Dr. Tripathi has several facets as a social level, and he recited that he is the only pediatrician. So we are waiting to listen to you and actually managing. हमारे तो हाथ पैर फूल जाते हैं अगर बच्चा आ जाता है तो we don't know how to say. कोई पूछ तो सकते नहीं है, वो बताता कुछ नहीं है, फिर पता नहीं आप कैसे करते हो, तो ये बताओ हमें. Thank you very much, sir. Professor Khilani, sir, Dr. Saini, and Professor Gupta, ma'am, and of course, my fellow delegates, most are pulmonologists, and I'm happy that my ex-student, Dr. Bajesh Shukla, is here, and he knows how I was tackling asthma patient in my asthma clinic. Anyway, he's a practicing pediatrician in Varanasi, and now quite senior. I think 25 or 30 years back you passed out your MD. Is it? Right. तो एक शेर से अपनी बात शुरू करूँगा और शेर डेडिकेट करूँगा ये हमारे जो प्रोफेसर खिलानी साहब हैं उनके लिए, और ये हमारे जो डॉक्टर पाठक हैं उन पे भी लागू होता है कि फिर उम्मीदों की शाम आई है, फिर उम्मीदों की शाम आई है, चांद सितारों को साथ लाई है. ये एसके पाठक का इनविटेशन नहीं है, ये आप सबकी चाहत तो देखो कहाँ कहाँ से बनारस खींच लाई है. When we talk of bronchial asthma, many things are among the pediatrician, I can say, and the practicing family physicians. Bronchial asthma in children is always underdiagnosed, so result in undertreatment. And later on, when he grows 20 or 20, 25, 30%, Dr. Saini will be the right person to tell, 25% around, they turn into adult asthma, if not properly treated. So around 75 to 80% they get all right. Most of the time, by the age of 10 years or 11 years, the airway sizes becomes optimum. So the disease which is underdiagnosed is likely to be undertreated. And the diagnosis is clinical. As contrary to adults, where you can have a spirometry and all, even in the Western countries, because for some time I was in the Boston Children's Hospital way back in 2000 for the fellow of respiratory medicine. There also the American children are very smart. 6-7 साल के बच्चे गटागट एक्सपायर हुए, हमारे यहाँ का 12 साल का भी क्या करें, फूकें कैसे फूकें, और यही होता है. और बनारस इज नॉट. सो कहने का तात्पर्य है कि स्पायरोमीट्री इज द बेस्ट टूल फॉर डायग्नोसिस. तो अब हमने क्या किया है कि स्पायरोमीट्री की बात ही नहीं, स्मॉलर चिल्ड्रन 6 मंथ, 7 मंथ, 8 मंथ, तो जीना तो एक बहुत बड़ी एसोसिएशन है, सब लोग आप जानते होंगे, जीना ने बड़ी सिंप्लीफाई कर दी. In pediatric asthma, childhood asthma, if any child under 5 years having reversible wheezing 2 to 3 times, this is asthma unless central protocol. Simple thing, most of the physician will diagnose. So this was the second. I tell you, the prevalence of asthma in pediatric age group is increasing. And another,
आई थिंक दुख की बात है कि mortality from bronchial asthma in all ages group is increasing in spite of best available inhalation techniques and drugs, unfortunately. Another, in a family physician, a practicing doctor, again, I don't know how much they have a spirometer, or not a spirometer, a peak flow meter. मैं अपने कानपुर में सब पीडियाट्रिशियन से कह चुका हूँ, भैया थर्मोमीटर लेते तो 400-500 रुपए का पीक फ्लो, सिंपल थिंग. ओडल चिल्ड्रन दे कैन रिवर्सिबिलिटी की बात हमेशा करते हैं. रिवर्सिबिलिटी है क्रॉनिक रिकरेंट. अगर वीजिंग है तो इट इज ब्रोंकियल एस्थमा अनलेस अंटिल. Definition, I am not teaching a PGs or UGs, so that then diagnosis, again I am coming. Diagnosis, again, it is easy, it's a clinical. मैसेज यहाँ से लेके जाना है कि ये क्लिनिकल डायग्नोसिस है, स्पायरोमीटर बड़ों की चीज है. सो रिकरेंट वीजिंग, कंटिन्यूअस वीजिंग नहीं ठीक हो रहा, think of foreign body, think of tuberculosis, think of any other things, but it is a chronic recurrent is that is. Then the night symptoms, रात में खांसता है, सुबह उठ के खांसता है, दौड़ता है खांसता है, मौसी के यहाँ जाता तो खांसता है, दिवाली पे खांसता है, होली पे खांसता है, ये खा के खांसता है. थिंक ऑफ ब्रोंकियल एस्थमा इन चिल्ड्रन. पहले डॉक्टर साहब वो सेंटर फॉरवर्ड खेल लेता था, डॉक्टर साहब अब तो ही वांट टू बी ए गोलकीपर. बेचारा एक्सरसाइज इंड्यूस एस्थमा है, समझ ही नहीं पा रहे हैं, ना स्कूल के टीचर ना पेरेंट्स. यस, आई हैव सीन अ चाइल्ड इन कानपुर, फुटबॉल प्लेयर था, पहले सेंटर फॉरवर्ड लेफ्ट राउट बिल्कुल पूरा था, अब ही वांट टू बी गोलकीपर. सो मे बी एक्सरसाइज इंड्यूस एस्थमा इज ए वेल नोन एंटिटी. देन द अर्ली मॉर्निंग सिम्टम्स. नाइट में कफ के दो ही कारण हैं. एक तो एलर्जिक राइनाइटिस के बाद जो टॉन्सिलर एनलार्जमेंट पोस्ट नेजल ड्रिप होती बच्चों में, या ये आपका ब्रोंकियल एस्थमा. देयर आर मेनी रीजंस, हार्मोनल एंड ऑल, एंड wheezing or the obstruction is very common in any lower respiratory infection in kids, particularly under 5. Because there are so many anatomical, immunological, physiological regions, that is the short of time I can't go. So trial of bronchial, what है? क्या होता है कि डॉक्टर साहब जब फलाने शर्मा जी इसको दवा दे देते हैं, क्या देते हैं, एस्थेलिन सिरप देते हैं, पेडनिसोलोन सिरप दे देते हैं, बच्चा ठीक हो जाता है, मगर महीने भर बाद फिर हो जाता है. तो ये ठीक हो जाता दवाई देने से, लेकिन फिर हो जाता है जब मौसम बदलता है या सर्दी जुकाम होता है. जुकाम अंदर घुस जाता है, ऐसे बताएंगे साहब इसका जुकाम सर्दी जो यहाँ थी ना सीने में घुस गई. तो जुकाम जब सीने में बच्चों को उतर जाता है तो देयर आर मेनी रीजन, एंड एनी लोअर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, वायरल, नॉन वायरल, एलर्जिक एंड ऑल कैन लीड टू ऑब्स्ट्रक्टिव सिम्टम्स. नैरोइंग, पॉइसलीजो पड़ा होगा इंटर में. If little narrowing, 4 times decrease in the airflow, वो क्या R square क्या होता था मुझे याद नहीं, पॉइसलीज लॉ सर फिजिक्स में नहीं पढ़ा था हम लोगों ने. तो स्मॉलेस्ट नैरोइंग लीड टू 3 or 4 times more decrease in obstructive airway. So that was the. Then stepwise management. Gina always say stepwise, and it is not a uniform. It is according to age, according to symptoms. It is regarding the various classifications, whether it is the mild, episodic, mild persistent, moderate persistent, or severe persistent. So treatment is also, it is tailor-made. It is not universal कि इस बच्चे को ये देंगे सबको देंगे मोर लगाते जाएं. So not. So then comes the age. 8 years. 7-8 years you can go for spirometry and trial of bronchodilator. हमारे लिए तो बहुत सिंपल होता है. जब भी देख रहे हैं कि 4 डॉक्टरों दिखा के आया, किसी ने ब्रोंकोडायलेटर नहीं दिया, एज ए स्मार्ट पीडियाट्रिशियन मैं उसको एस्थेलिन ऐड कर देता, डॉक्टर साहब बड़ा आराम मिल गया, साथ में आपने दिया,
Yes, this is also one of the method of diagnosing childhood asthma. Then, yeah, stepwise, British Thoracic Society, even the GINA guidelines, they always say always step 1 and the pharmacology. I am not going in detail. So this to be made depending upon the age, symptoms and all. Then relievers, they are available, as madam has said. We have SABA, short acting, then ICS, very good. Boon, Bardhan hai madam. Inhaled corticosteroids is a boon, and along with the LABA also, particularly in the moderate, persistent or severe persistent, depending upon the severity, dose, the low dose ICS, then the little medium dose or the higher dose. But please take the height and anthropometry in children receiving moderately high doses of ICS, because it can lead to growth retardation. So one should try not only the bronchial asthma, but the child as a whole, because the child is growing. Adult नहीं बढ़ेंगे, COPD में स्टेरॉइड आप दे देंगे बहुत ज़्यादा, लेकिन ये बच्चा छोटा रह जाएगा. So one should take also mind that the high doses of ICS, long use, 3, 4 months, 6 months, can lead to growth retardation, please. Then second things, exacerbations. As madam has also said in COPD, exacerbations, they are important. Severity assessment, salbutamol nebulizer. Always carry on method. In children, up to 10 years, always use the MDI, spacer, with mask or sometimes without mask. Please, खाली फूकनी नहीं देनी है. मैडम एक बार एक बच्चे को लिखा, 1 महीने 1.5 महीने बाद आया कि हाँ साहब हमने बताओ क्यों नहीं दिया, वो खुल गया, उसको लगाना नहीं आता, गलती हमारी है. BG pediatrician, I don't have a paramedic. Please keep a paramedic for asthma patient for education. स्कूल में बता दीजिए. One of the Georgian professor's son died in one of the engineering college due to acute severe attack of asthma in Lucknow only. दिल्ली में, आप तो दिल्ली में सर, वहाँ एक लड़की का हुआ था, she also popped up in school, उसमें ह्यूज कराई हुई थी, मुझे याद नहीं, मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा था. So please, if one child, you caregiver को बताइए बच्चे को मेरे अस्थमा है, बच्चा अपना ये सब लेके जाता है, कृपा करके जब भी इसको कोई दिक्कत हो तो इसको जरूर इनहेलर दिलवाइए. It should not be as a taboo. अरे ये क्या लेके आता है, अरे भाई बड़ी सिंपल चीज़ है, एक्सेप्टेंस. प्लीज स्कूल टीचर, केयर गिवर, इनको बताइए, डॉक्टर पाठक की तरह लोगों को रखिए. We in Kanpur, you remember when I was the Chodi, I used to keep these pharma people. सिप्ला वाला बंदा हमने क्या, वो चलाओ टीवी, अपना सब चलाओ एजुकेशन, और एक रेजिडेंट की ड्यूटी अलग से लगाते थे और साथ में एक को लगाते थे एलटी को, भैया तुम बताओ ये फूकनी कैसे यूज होगी. एंड आपको मालूम होगा कि इन यूके about 60% paramedics, they were not knowing, and the doctors, they were not knowing before 10 or 15 years, I read, proper use of these devices. खाली फूकते रहते थे. अब तो खैर MDI आ गया, वो आ गया, और वो खुल गया, उसका गांव का था, बेचारे गांव के सीधे होते. बोले डॉक्टर साहब वो तो टूट गया है. मैंने कहा टूटा है, देखें कुछ नहीं लिए होता. तो ये बताना है कैसे लगता है. प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास 10 दवाइयाँ लिखने का समय है. आई एम सॉरी टू से, आई एम ऑल्सो प्रैक्टिसिंग डॉक्टर, हमारे साथ के हैं, लेकिन एजुकेशन और जितनी क्रॉनिक डिजीज़ हैं, चाहे COPD हो, चाहे अस्थमा हो, चाहे डायबिटीज़ हो, चाहे हार्ट डिजीज़ हो, चाहे कुछ हो, आपको बताना पड़ेगा. हम तो ट्रायंगल बनाते हैं, एजुकेशन, रिलीवर, प्रिवेंटर. एजुकेशन नहीं है तो 2 पहिए गाड़ी बेकार चलेगी नहीं. प्लीज एजुकेट, केयर द पर्सन. इफ द चाइल्ड इज ओल्डर, उसको बताइए, आजकल बच्चे स्मार्ट हैं. और इसके बाद उसके केयर गिवर्स जो भी हों घर में, पेरेंट्स हैं, कौन है, दादी अम्मा, सब बच्चों को अगर ये नज़र रखना ज़रा. और वो SpO2 वाला तो आजकल पल्स ऑक्सीमीटर हर एक घर में है. हाँ ज़्यादा दिक्कत है, नाप लीजिए, 90 से नीचे तो नहीं आ गई.
और स्कूल में बता दीजिए, थी द पेरेंट्स, केयर गिवर, चाइल्ड और हिमसेल्फ एंड स्कूल टीचर। मेरे बच्चे को दमा है भैया, कभी कभी बड़ा अटैक भी पड़ जाता है, डॉक्टर साहब ने कहा इसको हम अपने बैग में लेके भेजते हैं, तो कृपा करके देख लेना, जब अटैक पड़े तो दे देना प्लीज। ये कहना है बच्चों के लिए, बड़ों में भी कहना है। द चाइल्ड engineering college, he was studying BTech, son of a professor, Georgian, I remember। चले गए स्कूल को मतलब नहीं, बच्चा पॉप अप हो गया कई 2-4 साल पहले। सो सैड, आई एम सॉरी टू से। सो दैट वाज, चलाओ जरा, कहाँ चले गए यार। मॉनिटरिंग, यस, वही चीज, मॉनिटरिंग। एस्थमा इज ए क्रॉनिक डिजीज। ये डायरिया नहीं है, 5 दिन तक ORS दिया, जिंक दे दिया, खाना पीना दे दिया और ठीक हो गया। इट इज ए क्रॉनिक डिजीज। बताइए, ये डायबिटीज की तरह है, ये हार्ट डिजीज की तरह है, ये और JRA तरह तरह के जो हैं इस तरह से है। इसका ट्रीटमेंट भी लंबा है। एपिसोडिक कलर टेलर ने बताया था, बाकी परसिस्टेंट कुछ भी हो, चाहे माइल्ड हो, चाहे मॉडरेट, चाहे सीवियर हो। और कब इसको तुरंत आना है, इमरजेंसी भागना है, ये जरूर बताओ, ये जरूर बताओ, ठीक है ना। तो ये सब चीजें हैं, ये जरूर बताइए, अकेले नहीं होगा। डॉक्टर साहब असिस्टेंट रखिए, कोई वार्ड बॉय ट्रेन कर लीजिए। ये ग्रीन, जीना ने बहुत अच्छा कर दिया। ग्रीन जोन में है बच्चा, ऊपर लिखेंगे ये ग्रीन जोन पे, येलो में है या रेड में है, ठीक है ना, सिम्टम के हिसाब से। नो सिम्टम, दिन में भी नहीं, नाइट भी नहीं, चलिए ग्रीन, गुड, गो। येलो, यस, वी हैव टू गिव साबा और समटाइम्स कंसीडर द इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड, और इन एक्यूट इमरजेंसी ओरल प्रेडनिसोलोन। ओरल प्रेडनिसोन 10 दिन तक 2 मिलीग्राम पर केजी आप दे दीजिए, कोई साइड इफेक्ट नहीं, 10 to 15 days। यूज फ्रीली इफ नीडेड, टेक द हेल्प ऑफ पीडियाट्रिशियन। Then the red zone, serious, खतरा, severe symptoms, एडमिट करना पड़ सकता है। और कब एडमिट करें, आपको केयर गिवर को बताना पड़ेगा। बच्चे को बड़े बड़े स्मार्ट हो गए, इनको बताना पड़ेगा, बेटा जब बात नहीं कर पा रहे, ठीक है, और ये चल नहीं पा रहा, बात नहीं कर पा रहा, ठीक से नहीं कर रहा, सैचुरेशन डाउन हो गया है, नीला पड़ रहा बच्चा, सुस्ती आ रही, सुन्न पड़ रहा, ढीला पड़ गया, क्लास में भी तो लेटना चाहता है, यस, बताना पड़ेगा हमें अपने कोई पैरामेडिक रखने पड़ेंगे, ठीक है ना। ये सब करना पड़ेगा, अदरवाइज द डेंजरस डिजीज। अनफॉर्चुनेटली, जैसे हमने पहले कहा था, स्टिल द मॉर्टेलिटी इज क्वाइट हाई इन ऑल एजेस। आई एम टॉकिंग अबाउट चिल्ड्रन, इन स्पाइट ऑफ सच वंडरफुल गुड ड्रग्स इंक्लूडिंग योर बायोलॉजिक्स एंड ऑल। तो आपको देख, देन द रिफरल है ना, लेकिन बायोलॉजिक हम नहीं देते हैं। आई यूज्ड टू रिफर ए पीडियाट्रिक पल्मोनोलॉजिस्ट और यूज ए ट्रेन्ड पर्सन, देन अल्टरनेटिव डायग्नोसिस। हाँ, ये भी देखिए, कोमॉर्बिड कंडीशंस बच्चों में बहुत होती हैं, एलर्जिक राइनाइटिस है, राइनोसाइनोसाइटिस है, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज है, तरह तरह की हैं। ये सब आपको देखना पड़ेगा, अगर हैं तो वन हैज टू टेक केयर। जैसा कभी डॉक्टर पाठक ने, एलर्जिक राइनाइटिस है तो आपको देना पड़ेगा, इंट्रानेजल फ्लूटिकासोन देना पड़ेगा, डिकंजेस्टेंट देने पड़ेंगे, लेकिन डायग्नोसिस करने पड़ेगा। मैं तो हमेशा कहता हूँ, ब्रोंकियल अस्थमा का छोटा भैया एलर्जिक राइनाइटिस, बड़ा भैया मैडम के डिपार्टमेंट COPD। These are the other, they are modern other medicine, but they are required in very less people, at less than 1%. There should be a plan, action plan। ये वो बताया था, ये ऐसी बीमारी नहीं है चुटकी चुटकी, ठीक है ना। तो इसमें आपका करना पड़ेगा। लास्ट तो सब चीज हो गई। केयर गिवर्स, बात स्कूल के टीचर, केयर गिवर, बच्चे को खुद बताइए कब खतरा है। और पीक फ्लो मीटर, वो थर्मोमीटर है ब्रोंकियल अस्थमा का, कृपा करके वो रखिए। और कैसे किया जाता, प्रिवेंटिव स्टडीज, वैक्सीनेशन, टीके लगवाइए, फ्लू एवरी ईयर, न्यूमोकोकल देख लीजिए लगा कि नहीं लगा है। मैं तो हर एक बच्चे तो कहते हैं हर साल ये फ्लू का टीका लगाना है।
एंड कोविड-19 वैक्सीन के बारे में कुछ डिबेट है, लेकिन अगर नहीं लगा है, चूंकि वी हैड ए ट्रायल इन कानपुर, बच्चों में कोवैक्सीन का ट्रायल किया था, बाय द वे आई वाज वन ऑफ द इन्वेस्टिगेटर्स, तो बहुत सेफ थी, सब कुछ बढ़िया था, तो आप लगा सकते हैं, लेकिन डॉक्टर से पूछ के वो करके। एनवायरमेंट कंट्रोल, घर के अंदर का नहीं ध्यान रखते हैं, हैवी कारपेटिंग, पर्दे, ये परफ्यूम, वो परफ्यूम, अगरबत्ती, फलानी चूहा बत्ती, कछुआ बत्ती, अरे ये सब गड़बड़ है। मच्छरदानी सर, मच्छरदानी और पैसिव स्मोकिंग, ठीक है ना, एक्सरसाइज, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। 2.5 साल पे एडमिशन करा दिया सर। सबको भूख लगी है बहुत। भूख लगी सर, मुझे भी लगी है। आज मैंने लंच भी अपना स्किप किया था इसलिए कि ब्रेकफास्ट हैवी हो गया। तो अगेन आई एम सेइंग, एक्सरसाइज नॉर्मल बच्चे की तरह, सर जो नॉर्मल बच्चा है वो अस्थमा का बच्चा भी खेलेगा। कई लोगों ने लंच भी नहीं किया। कभी शॉर्ट एक्टिंग देना पड़ेगा खेलने के पहले, खेलने के बेटा सुट्टा लगा लो, सुट्टा लगा लो, या so this is a technique and friends, now be serious. Now everything can wait, our dinner can wait, but the child cannot. We are guilty of many errors and omissions, but our worst crime will be abandoning our children. Right time the bones are being formed, the brain is being developed and the blood is made. And to him, sir, Kilnani sir, to him we can't answer tomorrow, his name is today. Thank you very much. So it was amazing कैसे मजाक में आदमी मैसेज कन्वे कर सकता है, दैट वाज। और आपने जो शेर सुनाया और बीच में जो हिंदी और अंग्रेजी का आप, हाँ, तो मैं आपको अमिताभ बच्चन की उपाधि देता हूँ।